Hello everyone, welcome to my channel. One more new anatomical part, that is larynx. In previous session, in previous video, we learned about the pharynx, what is the classification of pharynx, how does it work, what anatomy, what is physiology, and so on. From this lecture, we learn a new topic, that is larynx, which is also known as a voice box. So let's continue. Larynx. So, larynx is a voice box which is 11 centimeter in length and it's composed of ninth pair of cartilage. Okay, so how does it work? Everyone knows from the last fifth standard what is larynx. Larynx is a voice box and responsible for a voice production. ये सारी चीजें सबको पता है. What's new? Larynx is made up of 9 pair of cartilage. Which are those? 3 hyaline cartilage and 3 elastic cartilage. 3 hyaline cartilage, 3 and 3 elastic cartilage. Which are those? 3 hyaline cartilage, one of them TCA. TCA, that is thyroid cartilage. Second one, cricoid cartilage. And the third one, arytenoid cartilage. These are 3 hyaline cartilage. Thyroid cartilage, 1 in number. Cricoid cartilage, 1 in number. And arytenoid cartilage, 2 in number. Then elastic cartilage. One of them, epiglottis. Epiglottis is also a cartilage, which is the elastic cartilage, which is 1 in number. Second, cuneiform cartilage, which is 2 in number. Corniculate cartilage, which is 2 in number. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 cartilage present in the larynx, which is responsible for their functioning. Okay, 3 hyaline cartilage, which are thyroid. पहला thyroid cartilage, second one cricoid cartilage, third one arytenoid cartilage. These 3 are hyaline cartilage. And the next one, elastic cartilage, which are epiglottis, cuneiform, and corniculate cartilage. I'm sure you share these numbers. Okay, the next. Then, cartilage and their importance. सबसे पहले thyroid cartilage. Do you heard what is Adam's apple? Adam's apple is prominent in a male, adult male, due to testosterone. तो अदाम्स एप्पल कार्टिलेज है वो adults, मेल adults में prominent रहता है. This is kind of structure of Adam's apple, which is also known as a thyroid cartilage. And thyroid cartilage, which cartilage? Hyaline cartilage. Okay, so these are true vocal cords, and these are arytenoid cartilage. These are arytenoid cartilage which support the vocal cord. समझ में आ रहा है? ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज. ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज. ठीक है. और ये क्या है? अरिथनॉइड कार्टिलेज. और ये क्या है? ट्रू वोकल कॉर्ड्स. व्हाट इज इट? ट्रू वोकल कॉर्ड. और यहीं पे ऐसे वेस्टिबुलर फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं. क्या प्रेजेंट रहते हैं? वेस्टिबुलर फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, विच इज, इनको बोला जाता है वेस्टिबुलर फोल्ड्स, विच आर फॉल्स वोकल कॉर्ड. और इनका यूज कब होता है? चलो वोकल कॉर्ड, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनका यूज तो वॉइस प्रोडक्शन के लिए होता है. ठीक है.
ये जो वोकल कॉर्ड्स है इनका यूज वॉइस प्रोडक्शन के लिए होता है, बट ये जो वोकल फोल्ड्स है उनका यूज कहाँ होता है? उनका यूज वल्साल्वा मैनुअल में होता है। जिस वक्त डिफिकेशन होता है, जिस वक्त डिफिकेशन की वजह जो हम ब्रीथ होल्ड करते हैं, दैट इज अ वल्साल्वा मैनुअल। ठीक है, तो उसके दौरान ये हेल्प करता है, दैट इज वल्साल्वा मैनुअल। समझ में आया है उनके फंक्शंस? Arytenoid cartilage, which is help in it supports the vocal cord, also help in voice production. अभी दूसरी चीज, हमारी वॉइस की पिच कैसी होगी, लाउडनेस कैसे होगा, क्लियरिटी कैसी होगी, ये सारे डिपेंड करेगा हमारे वोकल कॉर्ड्स पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? वोकल कॉर्ड पे। और वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन, शेप कैसे रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? अरिथनॉइड कार्टिलेज। कौन डिसाइड करेगा? अरिथनॉइड कार्टिलेज। इट मींस पोजीशन ऑफ अरिथनॉइड कार्टिलेज इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द शेप टू द वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वॉइस प्रोडक्शन। अगर ये लूज हो गए, अगर अरिथनॉइड कार्टिलेज लूज हो गए, तो आपकी वॉइस क्लियर एंड लाउड नहीं आ पाएगी। समझ में आया? ओके, after that some important cartilage which are used in some important procedures, that is सबसे पहले आएगा थायराइड कार्टिलेज हो गया। थायराइड कार्टिलेज अदाम्स एप्पल भी बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं? अदाम्स एप्पल भी बोलते हैं। जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? यहाँ पे जो अडल्ट मेल रहता है, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पोर्शन हम देखते हैं, दैट इज अदाम्स एप्पल, दैट इज thyroid cartilage, which is the largest cartilage out of 9. समझ में आया? The next one, cricothyroid cartilage. Cricothyroid cartilage. Cricothyroid cartilage का फंक्शन क्या है? It provides important landmark for the tracheostomy. इसका यूज कहाँ पे होता है? ट्रैकियोस्टोमी के लिए। जब भी हम ट्रैकियोस्टोमी करते हैं तो इसके थ्रू ही हम एक पाथवे क्रिएट करते हैं फॉर द ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, तो ओपन द एयर, इट इज एन emergency landmark for the tracheostomy. Understood? That is cricothyroid cartilage. Then, function of cricoid cartilage. Cricoid cartilage, how it works? Cricoid cartilage, from the lower border of cricoid cartilage start a lower respiratory tract system. इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम कहाँ पे एंड होगी? लैरिंक्स के लोअर बॉर्डर पे। और लोअर बॉर्डर पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। ओके, सो क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम एंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज इज अ स्मॉल सिग्नेटरी व्हिच एनसर्कल द लैरिंक्स। ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज वो रिंग शेप में रहती है, जो कंप्लीटली हमारे लाइनेंस को एनसर्कल करते हैं, राउंड रहती है, लाइनेंस के अराउंड प्रेजेंट रहती है, जो एंटेरियरली नैरो रहती है एंड पोस्टेरियरली ब्रॉड रहती है। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन अ न्यूनेट एंड अ चाइल्ड यूज नॉन कफ्ड एंडोट्रकियल ट्यूब। व्हाई? द आंसर इज बिकॉज cricoid cartilage plays important role as a cuff. That's why there is no need of cuffed endotracheal tube. ठीक है, अंडरस्टूड? इतना क्लियर है? क्रिकॉइड कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ये कहाँ सिचुएटेड करता है, क्या लोकेशन है इसकी, कैसे फंक्शन करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये भी समझ में आ गया आपको? क्रिकॉइड कार्टिलेज का क्या फंक्शन है? दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट. Let's draw cricoid cartilage from its
लोअर बॉर्डर क्या स्टार्ट होता है? स्टार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम स्टार्ट होता है। ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट सिग्नेट रिंग है जो एंटेरियरली कैसी रहती है? नैरो रहती है एंड पोस्टीरियरली कैसे रहेगी? ब्रॉड। अंडरस्टैंड? दिस इज ऑल अबाउट द cricoid cartilage. Then one more cartilage, that is epiglottis. That is epiglottis. Epiglottis is which type of cartilage? It is the elastic cartilage. We'll learn about it. Epiglottis is the elastic cartilage, which is 1 in number. So, shape of epiglottis in adult is leaf shape. Its shape. Adult में कौन सा shape रहेगा? Leaf shape. And child में और neonate में कौन सा shape रहेगा? Omega shape. Understood? ओमेगा शेप। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? पाथवे को क्लोज करना अल्टरनेटली। अल्टरनेटली किसको क्लोज करना? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज करना। जब भी हम एंगल्फ करते हैं, फूड एंगल्फ करते हैं, तब ये क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ट्रकिया को क्लोज करता है। ठीक है? टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, अगर ये क्लोज करना भूल गया, अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लोज करना भूल गया तो क्या होगा? जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा और क्या होगा? निमोनिया। विच टाइप ऑफ निमोनिया? दैट इज एस्पिरेटरी न्यूमोनिया। विच टाइप इट इज? एस्पिरेटरी न्यूमोनिया। और भी क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्टिव sleep apnea. Understood? This condition can happen. I hope सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो कि these are my questions, these are my doubts. अगर कुछ डाउट्स भी हैं आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ मेडिकल। अगर आपको कोई टॉपिक भी क्लियर करवाना हो, इससे पहले लेना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये टॉपिक मैम प्लीज आप ले सकते हो। ठीक है? सो एवरीवन नोज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंक्स। Larynx is the voice box which is responsible for the voice production, which is clarity, for the clarity of speech, loudness, sound, type of sound depends on the। सबसे पहले आपकी स्पीच और जो साउंड है वो डिपेंड करेगा वोकल कॉर्ड की लेंथ पे, उसके टाइटनेस पे और एरेक्नॉइड जो कार्टिलेज उसके पोजीशन पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का वोकल कॉर्ड है वो लूज हो गया, कार्टिलेज की पोजीशन मिसप्लेस हो गई, डिस्प्लेस हो गई या फिर वाइड हो गई, तो वॉइस की जो स्पीच है वो कम हो जाएगी। ठीक है? एंड द लाउडनेस ऑफ वॉइस डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय द वोकल कॉर्ड्स। अंडरस्टैंड? एंड वन मोर मैनुअर, दैट इज बर्प मैनुअर और सेलिक्स मैनुअर। सेलिक्स मैनुअर क्या है? आपने पढ़ा है कभी? होपफुली दिस इज वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। Selix manual or burp. This is a kind of procedure. Selix manual is a procedure where during a tracheostomy after anesthesia, anesthesiologist pressure मतलब जो वो इसोफेगस है उसको बैकवर्ड प्रेस करेगा। ठीक है? एट द क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो क्रिको इसोफेगस जो एरिया रहता है जहां पे क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उस एरिया को प्रेस करेगा इसोफेगस को क्लोज करने के लिए, ताकि कोई भी एस्पिरेशन ना हो, ताकि इसोफेगस से कोई भी कंटेंट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे। उसे प्रिवेंट करने के लिए इसोफेगस को प्रेस किया जाता है बैकवर्ड, क्रिकॉइड कार्टिलेज को प्रेस किया जाता है बैकवर्ड टू क्लोज इसोफेगस टू प्रिवेंट ऑन द एस्पिरेशन।
which can cause aspirating pneumonia. समझ में आया? जैसे आपका लैरिंक्स स्टार्ट होता है C4 to C6. ओके, दिस इज लोकेशन ऑफ लैरिंक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? दिस इज लोकेशन ऑफ लैरिंक्स. हमने पढ़ा था कि सबसे लास्ट बॉर्डर में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज. C4 to दिस इज C6. यहाँ पे ये आपका लैरिंक्स है, ये क्या है? C6. समझ में आया? दैट इज C6. दिस इज अ क्रिकॉइड कार्टिलेज. विच कार्टिलेज? क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, और यहीं पे हमने ये भी पढ़ा था. और एक सेकंड क्या है? यहां से इसोफेगस भी स्टार्ट होता है. ठीक है, इसोफेगस, तो इसी को बोलते हैं क्रिकोइसोफेगस. ठीक है, तो जैसे हम इसे प्रेस करेंगे, जैसे हम इस थायराइड इस क्रिकॉइड कार्टिलेज को प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड प्रेस होगा, और ये प्रेशर किस पे प्रोवाइड करेगा? इसोफेगस पे. तो इसमें जब प्रेशर प्रोवाइड करेगा तब ये ब्लॉक होगा. इसोफेगस ब्लॉक होगा कि नहीं? ब्लॉक होगा. तो इसोफेगस से जो भी गैस्ट्रिक कंटेन है वो बाहर आ पाएगा क्या? नहीं. अगर बाहर नहीं आएगा, और पेशेंट को क्या है? एनेस्थेसिया दिया है हमने, पेशेंट सेड्यूस हो गया है. ठीक है, टोटली सेडेट हो गया है. ठीक है, तो इस कंडीशन में एस्पिरेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो इसीलिए सेलेक्स मैन्योर ये प्रोसीजर प्रोवाइड की जाती है टू द ऐसे पेशेंट को, जिससे कि ये एस्पिरेशन ना. समझ में आया? होपफुली यू गॉट इट. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में बता सकते हो. In this next session, we start with lower respiratory system, that is trachea, then bronchus, bronchi, bronchioles, lungs, and alveoli. What their functioning, what is respiration, how does it works, what is the process of purification, filtration. This all we learn in the next session.